My today's topic for presentation is Ayurvedic management of seborrheic dermatitis. The definition as goes, seborrheic dermatitis is a common inflammatory skin disease presenting with a papillosquamous morphology in areas which are rich in sebaceous gland, particularly scalp, face, and body fluids, body folds. It closely relates to the dandruff, causes dry or greasy peeling of the scalp, eyebrows, face, and sometimes trunk also. Here, I would like to let you know that papillosquamous is a condition in which presents with both papules and scales, or both scaly papules and flakes. These conditions are commonly found in psoriasis, lichen planus, and pityriasis rosea. So the pictorial presentation of seborrheic dermatitis would look like this. The skin lesions in seborrheic dermatitis would be like papules, scale, and crust. The papules, as you see in the first picture, that papules are small solid elevations which represent the next stage of Raktadushti. In scale, the lesions of the skin appears like a flake arising from the horny layer. In the second picture, you can see this white scales which are coming from the layer of the skin. These lesions are similar to Matsya Shakla seen in Kapha conditions. Matsya Shakla, which is described in Ekakushta, the lesions of Ekakushta skin lesions look like मत्स्य शकल म्हणजे just like माशाचे खवले जसे असतात त्या पद्धतीने जे असतात it is called as मत्स्य शकल. Here we can see it. Next is crust. Crust looks like scale, but it is composed of dried blood or tissue fluid. Here you can see the yellowish and whitish, the thick composition. In Ayurveda, we can say it represents Pakwa stage of Kapha-Rakta Samurchana in stage. These are stages in which the seborrheic dermatitis develops. The first is papules, scales, and crust. All these three conditions are seen in the seborrheic dermatitis. Before going forward, we'll see the anatomy and the basic introduction form of sebaceous glands. Sebaceous glands, which are distributed mostly densely on face, scalp, chest, back, and upper arms. These are widely distributed all over the area in the body, except on the palms of hands and soles of the feet. Here in the picture, we can see it is positioned around the infundibulum of the tube. Each have a single duct communicating with it. The main function of the sebaceous glands, it secretes sebum, oil into the duct, which is very rich in triglycerides, cholesterol. It is highly sensitive to hormonal stimulation by androgens such as testosterone. So circulating testosterone reaches the skin where it is changed into dihydrotestosterone. DHT acts on the sebaceous glands, causing increase in the size and oil production. There are specific sites where seborrheic dermatitis is found, one of which is face, scalp, chest, back, and upper arm. Also on the eyelids, in which there are present meibomian glands, which are specialized types of sebaceous glands which secrete the sebum into the tears. Also, in female, the sebaceous glands which are surrounded near the nipples are called as areolar glands, which helps in lubricating the nipple. Also, in Fordyce spots, that is, which are present in lips, gums, and inner cheeks and genitals, which secretes yellowish white milia or milk spots. So we can say that the increased activity of sebaceous gland is most commonly seen in teenagers or at puberty levels.
Hello, is my voice audible and clear? Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, in the teenagers and at the puberty levels, we see the increased activity of the sebaceous glands, which leads to seborrheic dermatitis and all such conditions. The composition of sebum. Sebum is from sebaceous glands plus materials from keratinizing epidermis and secretion from apocrine and eccrine glands. The main compositions of sebum is triglycerides and free fatty acids, which composes the most part of the sebum. Next is the wax esters, squalene, cholesterol esters, and cholesterol. On skin surface, sebum undergoes enzymatic degeneration due to decomposition of bacteria. As we know, the sebum is odorless, but its breakdown by bacteria or any infections can produce strong odors. So the secretions which are normal, that is oily secretions which are covered on the face and scalp, they are always odorless unless it is infected with any bacteria which produces strong odors. These wax esters and squalene reduce from 2 to 8 years of age, and it rises from adult level after 8 years of age. That is during the puberty and the teenager levels, the sebum production is highly increased. Next slide, we can see the sebaceous gland distribution. In adults, in the first picture, we can see the red pictures and the orange pictures. The red denotes the high density of the sebaceous glands, which are highly present in the face, scalp, upper chest, arms, shoulders, axillary folds also. And in the orange parts, that is over the trunk and the lower extremity, it is very low densely found. Also, in the next second picture, you can visibly see that in which part the seborrheic dermatitis affects, which is on the scalp, which forms as a mild form, which is called as dandruff in the eyebrows or in the eyelids margins, which is termed as seborrheic blepharitis in nasolabial folds, which is called as seborrheic petaloid, also behind the ears, which we'll see in the further slides, also near the chest region, the presternal and the submammillary gland regions also near the umbilicus and the groin regions also. So here the widely distribution of seborrheic or sebaceous glands is seen, and we can see the seborrheic dermatitis highly for these regions. The etymology for the same is it is bimodal in age incidence. It is seen in the first 3 months of life, also from 4 to 7 decade of life. Also, it is common in HIV/AIDS and immunocompromised patients, also in Parkinsonism, and men are highly effective than women due to increased secretions of the testosterone and androgens hormones. The prevalence rate is 3 to 5%. The exact cause is unknown. That is seborrhea, it is a term, but no sebaceous gland pathology is found. Sebum production is during the first infancy period, also after the puberty and puberty age. The retention of skin surface lipids, the sebum, which is highly rich in cholesterol, triglycerides, squalene, wax esters, and free fatty acids. It is thought to be an aberration in epidermal proliferation. The etiopathogenesis, we can say, also drugs such as which contains gold, arsenic, and methyl dopa also are the causative factors for seborrheic dermatitis. In seasonal predilections, such as in the winter season, also we see the seborrheic dermatitis. Also in stress factors is the most important factor. Also in Ayurveda, it is said that Chintan Nam Chati Chintanat, which is Rasavasarda Dushti Hetu, also the nutritional deficiency such as zinc and biotin, which is vitamin B1,
Zinc, which is plays an important role, its deficiency may lead to uh, down or lessening of the immunity of the skin. Also in biotin, which reduces the skin immunity. Pathophysiology, you can say the disruption of skin microbiota, impaired immune reaction to Malassezia species. Specifically, in seborrheic dermatitis, it is said that it is a fungal infection, and the species such as Malassezia, it plays an important role in the degradation of the sebum and consumption of the saturated fatty acids, disrupting the lipid balance on the skin surface. So, abnormal shading of the keratinocytes and epidermal barrier disturbances associated with genetic factors. So, these are the few things according to the Maddon of pathophysiology of the seborrheic dermatitis. In allopathic science or in modern science, we see seborrheic dermatitis in two patterns, in clinical patterns at infantile age, which is called as infant seborrheic dermatitis, and also in adult seborrheic dermatitis. The clinical patterns in infants are seen in three types, such as cradle cap, the truncal lesions, or the Leniere's disease. In the cradle cap, as you see in the picture, uh, the flakes and the scales and the crust which are over the forehead looks like the cradle cap. So it is termed as cradle cap in the infants. Initially, the sparse inflammatory yellowish oily flakes converts into thick crusted grayish yellow scales over an erythematous flake which extends behind the hairline. And in this condition, there is no alopecia or no hair fall. So it is termed as crusta lactea and cradle cap. It is commonly observed in the infants from the birth to the first year. Also, we can see the truncal lesions, which are widely spread over the abdomen, chest, also in the buttock regions, the thigh regions also in Leniere's disease, in which extensive exfoliation of the dermis is seen. The Leniere's disease is specifically seen in infants while being exclusively which are breastfed and having chronic diarrhea. As the breast milk has a low content of biotin, which leads to Leniere's disease. Also, in chronic diarrhea, that is, dietary biotin is not observed, and hence, in chronic diarrhea, we can see such as dry, rough scaling of the skin, which presents in the form of dermatitis and which easily sees as the peeling of the skin. Here we can see the whitish flakes and scales, which are easily visible in the infants. So these are the three patterns which are seen in the infants, that is cradle cap, the truncal lesions and the Leniere's disease, which are spread all over the body. The clinical pattern in adults, as we see that the sebaceous glands are most commonly distributed over scalp, face, trunk region and generalized also. So in scalp pattern, what we see in scalp in seborrheic dermatitis, we see in two types, that is pityriasis sicca and pityriasis amentis. The pityriasis sicca is commonly known as also as dandruff, which is mild, scaly, flaky scalp condition, which is non-inflammatory and in which there is exfoliation of the stratum corneal layer. In routine practice, what we see is dandruff. This is the mild form of the seborrheic dermatitis, or which is non-inflammatory. It is also termed as pityriasis sicca and pityriasis amentis, which is moist eczematous exudate which hardens into a thick. Here we can see that thick yellowish part which forms as a crust which is adherent to the scalp and glows up to local hair shaft.
which is here we can see the yellowish thick crust which are adherent to the skull. As the scale, crust or the scale which is removed, the area of baldness may or may not support future hair growth. So in Pityriasis amentis, we can see the visible baldness over also there. In adult seborrheic dermatitis, which is a wide spectrum which is present on the face, neck region, under the nasolabial folds, which is also termed as erythema nasolabial or retra. Also behind the ears, which is retroauricular. Also near the chest region, which is seborrhea presternal, or which is also present in shoulder blades. Also seborrhea blepharitis, which is present near the eyelids. This is the picture of seborrheic eczematite. This is due to itching dermatosis showing indistinct redness and pityriaciform scales. Here we can see the reddish scales and which is having severe itching showing indistinct redness, and also superficial fissures of the horny nails is also present over here. Here we can see the fissures are present. The next picture is of seborrheic dermatitis face, which is seen in the nasolabial folds, specifically which are red. Here we can see just as pundarik or kamal pushpavat, which is having intense erythema and scaling, and which increases due to stress. The stress factor triggers this nasolabial seborrheic dermatitis. Also, we can see the seborrheic blepharitis, which is seen due to Staphylococcus bacteria infections, or also due to dandruff of the scalp and eyebrows, causing greasy, waxy scales to accumulate along the margins of the eyelids. Here we see that the yellowish, the crust and scales gets accumulated near the margins of the eyelids. Also, behind the ears also, that is called as seborrheic retroauricular, which is present just behind the ears. Also the scaly white flakes and seborrheic otitis externa, which is also called as swimmer's ear, which is seen inside the eardrum. It is due to infection of the outer ear canal. It's often caused by water remaining in the ear after swimming. Also, the seborrheic dermatitis, which is seen on the trunk region. In the first picture, we see that in the presternal area, besides near the sternum, in the presternum area, these are the scales and flakes, the papules which you see, which represent the seborrheic dermatitis. Also in submammary region, also in the folds, here also we can see the papules and the white scales, which resembles the seborrheic dermatitis. Here, which is present, here we can, this seborrheic dermatitis also resembles with the pundarik kushta, which is described as a Mahakushta. This is the complicated form, or you can say the extensive phase of seborrheic dermatitis. It is called as seborrheic erythroderma. It is an inflammatory skin disease with redness and scaling that affects nearly the entire cutaneous surface. Here we can see it is also termed as generalized exfoliative dermatitis. It is called as exacerbation of an underlying skin disease such as psoriasis. This condition is commonly seen in psoriasis also, in seborrheic dermatitis, in contact dermatitis, in lichen planus, in atopic dermatitis also. Also, it is seen due to drug allergy such as use of topical steroids, which flares the skin lesions, the seborrheic dermatitis, and which leads to seborrheic erythroderma.
Here we can see the site-specific differential diagnosis. If the skin lesions are present on the scalp, we have to specifically differential diagnosis it with dandruff, psoriasis, the scalp psoriasis, atopic dermatitis, and impetigo. And impetigo. In dandruff, there is no non-inflammation. It is non-inflammatory condition which can be differentiated from seborrheic dermatitis. And also in atopic dermatitis, there is inflammation and severe itching. In face region, it has to be uh, differential with psoriasis, acne rosacea, contact dermatitis, uh, specifically contact dermatitis, which is contact with specific substance such as soap, cosmetic, or fragrances or jewelries. Also with impetigo, in ears, it has to be also uh, with psoriasis, contact dermatitis, in eyelids with psoriasis, atopic dermatitis, also demodex follicular infestation, which is due to mites infestation, which leads to dandruff. In trunk region, it has to be differential from pityriasis rosea and pityriasis versicolor, which is correlated with Pundarik Kushta or Sigma Kushta, pityriasis versicolor, which is specifically seen near the Sigma Kushta, which is specifically seen over the Ura region, that is chest region, in the genital areas such as psoriasis and candidiasis. In candidiasis, there will be specifically white discharge, the thick. So here we can differentiate between the seborrheic dermatitis. The treatments which are available in the modern science of the which are going on recently in the marketplace, that is the antifungals, shampoos such as ketoconazole, also creams such as cycloperoxylamine, terbinafine, metronidazole, various products such as mild to moderate corticosteroids such as desinid lotion, fluconazole acetate. All these treatments, the topical treatments, which are currently practiced in the allopathic science, can be used. Also, the systemic treatments such as ketoconazole, itraconazole, terbinafine, and isotretinoin. Uh, all these treatments are antifungal, which are given in the allopathic science for treating the seborrheic dermatitis. After looking at the allopathic and modern perspectives of seborrheic dermatitis, I would move forward towards the Ayurvedic perspectives of the seborrheic dermatitis. As we all know that all the skin disease and the skin lesions are termed in a valley which is called as Kushta. The Nidan Panchak Ayurvedic causes we can see Hetu in Bija Dushti, such as hereditary patterns also in Kurumij, which is Arunshika, and Desha Kala Dushti also. Here we can consider that the Panchakarma Apchar or Desha, which is termed as Bhumi Deha Prabedayana, also the Panchakarma Apcharajanya also leads to seborrheic dermatitis also in Chardi Veg Vigata also in Asatmata, that is allergy to specific substances uh, such as wheat grams, horse grams also, and in curds also we see Asatmata specifically in Viruddhahar, which is very detailedly explained in the previous lectures, such as milkshakes and the combination of Matsya and Dugdha. All these things leads to Kushta formation. Also in the Rasadushti, as we all know, the Rasavas of the Dushti, that is Kurushitam Atisnigdam Atimatram Samashnatam, Rasavani Dushyante, Chintanam Chati Chintana, that is all Guru Ahar, Adyashan, Shita, Atisnigda Ahar, it all leads to Rasadushti.
which in turn leads to kushta formation. Also in Rakta Dushti, Raktavasartas Dushti Hetus, as we all know that Vidahini Annapanani Snigdoshnani Dravanicha Raktavahini Dushyanti Bhajatamcha Atapanala. That is all Adrava Snigda Guru, also in Shita Ushna Krama 7, which is uh, going from extreme heat conditions to extreme cold environments. uh, जस्ट एज कि हम लोग बाहर घूम के आते हैं धूप में और डायरेक्टली एसी के कमरे में जाते हैं, तो भी ये जो व्यत्यास क्रम बताया गया है कि शीत उष्ण क्रम सेवन, ये जो व्यत्यास बताया गया है, ये भी रक्त दृष्टि का हेतु बोला गया है। और इससे भी कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। ओजो दृष्टि और एंड मानसिक भाव में भी सभी जो है कि भय है, क्रोध है, तो स्ट्रेस फैक्टर्स है, चिंता है, चिंतन आदि के हैं, ये सभी कुष्ठ के हेतु में बताए गए हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कुष्ठ जो है कभी भी एक दोषज नहीं होता है, ऐसे बोला गया है। त्रिदोषों के आधिक्य से कुष्ठ बनता है और उसमें से कौन से दोषों के लक्षण प्राधान्यता से है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुष्ठ का निदान कर सकते हैं। तो ये बेसिक चार्ट है, यह हमेशा अपने को याद रहना चाहिए कि वातज कुष्ठ में या वातज स्किन लीजन्स में, पित्तज कुष्ठ में या पित्तज वैवर्ण में, त्वक वैवर्ण में, कफज त्वक वैवर्ण में वक्त में क्या क्या गुण रहते हैं और उसके प्रकोप से क्या क्या होता है। तो वात आदित्य में रुक्षता रहती है, शोष रहता है, शूल रहता है, संकोच रहता है, परुषता रहता है, खरता भी रहती है, हर्ष मतलब रोम हर्ष उत्पन्न होते हैं उसमें। उसका वर्ण जो रहता है वो शाव, थोड़ा सा ब्लैकिश और अनुवर्णी स्लाइटली रेडिश, ऐसा कलर वात दोष के आधिक्य में रहता है। पित्त आधिक्य में दाह, राग, दैट इज रेडनेस, स्राव, पाक, विसर्गंध, क्लेद, अंगपतन, ये सब चीजें उसमें रहती हैं। कफदोष के आधिक्य में श्वेत, शैत्य, कंडु, स्थिर, उत्साद, गुरुता, स्निग्धता, जंतु भक्षण मतलब कृमियों द्वारा किसी जो स्किन लीजन्स है उसका भक्षण होना कफज दोष अवस्था में दिखता है। और क्लेद उत्पत्ति, ये सभी लक्षण जो है ये चरक चिकित्सा 7वां अध्याय जो कुष्ठ है उसमें लक्षण समुच्चय जब देते हैं चिकित्सा सूत्र के पहले यहाँ पे वर्णित किया है। कुष्ठ का जो है लक्षण समुच्चय के अनुसार उसमें वात दोष का आधिक्य है, पित्त दोष का आधिक्य है या कफ दोष का आधिक्य है, ये जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ही हम लोग चिकित्सा में सुकरता से या चिकित्सा तत्व अवलंबन करने में हम लोगों को इसमें आसानी हो सकती है। इसलिए डायग्नोस्टिक पैटर्न जो है ये हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए या अपने क्लिनिक में टेबल के नीचे जो है चार्ट हमेशा होना चाहिए। इसकी संप्राप्ति जो है जो एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस है, ये सभी जो है इट इज इंक्लूडेड इन विचर्चिता अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस जो है वो काफी हद तक विचर्चिका से होता है, जैसे कि कंडू, पिटिका, शावव्रण, लसिका। एंड अकॉर्डिंग टू विकल्प संप्राप्ति इट कैन बी described in various Shudra rogas also and in various pushtas also। जैसे कि इसमें एक्यूट कंडीशंस में कफ डोमिनेंस रहता है और क्रॉनिक कंडीशंस में जब वात का आधिक्य होता है तो उसमें रुक्षता, खरता, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। और कफज कंडीशंस में उसमें कंडू, स्राव, लसिका स्राव, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। Seborrheic dermatitis, it is associated with दारुणक एंड कफवात संसर्ग। इसका अगर रिजेम्बलेंस देखेंगे हम लोग आयुर्वेद में तो इसको दारुणक, अरुणशिका, ये सभी कैटेगरीज में होता है। और दोषाधिक्य के ऊपर देखेंगे तो ये कफवात संसर्ग से उत्पन्न होने वाला है। जैसे कि बोला गया है आयुर्वेद में कि कोई भी व्याधि का निदान नहीं कर पाए तो हम लोगों को उसके दोष दूषित समुच्चय के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस करके यही व्याधि है आयुर्वेद में, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन जो है स्काल्प पे है, फेस पे है, ट्रंक पे है,
ट्रंक के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंगली जैसे कि बोला है कि समुत्थान विशेष व्याधि नाम बदलता भी है, लेकिन दोष दुष्य समुच्चय जो है उसमें कफ और वात का संसर्ग हमेशा रहता है। इसमें व्याधि घटक जो है, जैसे कि दोष वात कफज है, दुष्य रसरक्त और लसिका, अग्नि जो है इसमें जठर अग्नि और रस धातु अग्नि मांड्य, इसके वजह से ये सब चीजें होती है। थोरतसों में रसव और रक्तव सुदस का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। रोग मार्ग अगर देखा जाए तो ये शाखागत रोग है। जैसे कि मैंने बोला कि अ, आयुर्वेद में इस वक्त इसका निदान क्या मिलता है सीवरेट डर्मेटाइटिस का। तो अगर हम कुष्ठ में उसको ढूंढने चलेंगे तो उसको एक कुष्ठ में भी वर्णित कर सकते हैं, जैसे कि मत्स्य शक्लों को बोला गया है किटिप कुष्ठ, जहाँ पे कीन खर स्पर्श होता है उसको किटिप कुष्ठ बोला गया है। वैसे उसके पैपुल्स और स्केलिंग के कीन खर स्पर्शत्व रहता है वातज आधिक्य में, तो उसको किटिप कुष्ठ के अंतर्भुत भी कर सकते हैं। या उसको विचर्चिका में भी, क्योंकि जो डर्मेटाइटिस है एक्जिमा है उसमें अगर स्राव है तो उसको विचर्चिका में भी इसका अंतर्भूत कर सकते हैं। तो दोषाधिक्य के ऊपर हम लोग जाएंगे तो ये सभी जो है कुष्ठ सीबोरेड डर्मेटाइटिस जो है सभी वात कफज कुष्ठ में आता है। और शूद्र रोगों में अगर देखा जाए तो इसको अरुणशिका में अंतर्भूत कर सकते हैं हम लोग, दारुणत में कर सकते हैं, तो मुख्य दोष पे आती कई कई अवस्थाओं में भी इसका हम लोग देख सकते हैं। ये उसका निदानात्मक पार्ट है। अभी इसका हम लोग देखेंगे कि चिकित्सात्मक पार्ट जो है इसका चिकित्सा तत्व क्या होना चाहिए। चिकित्सा तत्व देखने के पहले हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कि व्याधि अवस्था है, कफज है या वातज है, अगर उसमें स्राव कंडु आधिक्य है तो उसमें कफहर जो क्लेदनाशन चिकित्सा है वो सभी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे कि शोधन में वमन है, वृक्ष विरेचन है, शमन चिकित्साओं में बहिपरिमार्जन चिकित्सा है जैसे कि शालन है, मतलब धोना है, लेपन है, परिषेक है या अवचूर्णन है, ये सभी चीजें इसमें हम लोग कर सकते हैं। अगर इसमें वात की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसमें खरता रहती है, रुक्षता रहती है, परुषता रहती है, तो ये क्रॉनिक स्टेज रहती है, तो उसमें सभी वातहर चिकित्सा करनी है। जैसे कि अभ्यंग है या मूर्धनि तेलों में से शिरो अभ्यंग है, शिरोधारा है, शिरोपिचु है, ये सब चीजें हम लोग इसमें ला सकते हैं। इसमें बल्य चिकित्सा जो है ये त्वकसारता और रस धातु चिकित्सा प्राइम इंपोर्टेंस इसमें रखती है। अगर त्वकसारता रहती है तो इसमें फिर से व्याधि उत्पत्ति होने की संभावना कम रहती है। इम्यूनिटी में ओजोकर चिकित्सा देनी है। और पिगमेंटेशन अगर रहता है, हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसमें हम लोगों को वर्ण प्रसादन जो चिकित्सा है इस चिकित्साओं का अवलंबन करना जरूरी रहता है। हम लोग शोधन चिकित्सा में क्या क्या दे सकते हैं सीबोरेड डर्मेटाइटिस में, वो हम लोग देखेंगे। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट जो है वो वमन है, क्योंकि इसमें कफ का संसर्ग रहता है। और ये अगर हम लोग देखा जाए तो ये सभी विकार जो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस के अंतर्भूत जाने वाले हैं, वो सभी ऊर्ध्वगत और कफ स्थानों में उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए वमन का इसमें प्राइम इंपॉर्टेंस है, या सबसे प्रामुख्य में इसको हम लोगों को वमन करना जरूरी है। तो वमन में हम लोग पट्टोल, निम्ब, वासा, विडंग, इनका कषाय भी यूज कर सकते हैं, या पंचतिक्त कषाय या कुटच कषाय, इन द्रव्यों का के सहाय से हम लोग वमन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विरेचन। जैसे कि बोला गया है कि विरेचन में वृक्ष विरेचन यहाँ पे ज्यादातर यूज कर सकते हैं। उसमें वृक्ष विरेचन में हम लोग अविपत्तिकर चूर्ण या त्रिवृत्त चूर्ण ये यूज कर सकते हैं। वैसे ही उसमें हम लोग जो लेह या अवलेह कल्पना जो है, जैसे कि मणिभद्र लेह है, रुद्र विरेचन है, कल्याणक लेह है, अभयादि मोदक है, ये सभी हम लोग इसमें उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अभ्यंग। अभ्यंग हम लोग किससे कर सकते हैं। अभ्यंग में हम लोग एलादी तेल का उपयोग कर सकते हैं, महामरीचादी तेल का उपयोग कर सकते हैं। एलादी तेल जो है ये प्रायः वात कफ शामक है और वर्ण कहा गया है, इसका उपयोग हम लोग ला सकते हैं। महामरीचादी तेल है जहाँ पे एक्सेसिव कंडू है, कंडू आधिक्य है, कफ आधिक्य है, ऐसी अवस्थाओं में महामरीचादी तेल का अभ्यंग के लिए उपयोग में ला सकते हैं। वज्रक तेल जो है
स्पेसिफिकली जहाँ पे स्किन लीजन्स ज़्यादा है और उसको परुषता खरता जहाँ पे आधिक्य है, जहाँ पे वात आधिक्य है, ऐसे अवस्थाओं में वज्रक तेल का उपयोग ला सकते हैं, जिससे कि जो स्किन लीजन्स है वो मृदुता या सॉफ्ट हो जाए। उसके लिए हम लोग वज्रक तेल का उपयोग कर सकते हैं। निम्ब तेल ये भी है, निम्ब करंज तेल, नाल पामरा तेल। निम्ब और करंज तेल ये स्पेसिफिकली कंडु आधिक्य, कफ आधिक्य और कुर्मिज अवस्थाओं में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लाल पामरादि तेल यह भी स्पेसिफिकली वर्ण प्रसादक है, पित्त कफ शामक है, तो ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। शिरोधारा में हम लोग तक्र धारा का उपयोग कर सकते हैं या कषाय धारा का भी उपयोग कर सकते हैं। विविध द्रव्यों के संयोग से, जैसे कि मुस्ता है, अमल की सिद्ध तक्र धारा है या शिरोधारा है, ये हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। आरगवदादि गण है, एलादि गण है, जो वाग्भट सूत्र स्थान 15वां अध्याय में शोधनादि गण संग्रह में बताए गए हैं, इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और कुष्ठहर गण, जैसे कि महाकषाय बोले गए हैं चरक सूत्र स्थान 4 अध्याय में, जो कुष्ठहर गण है उसका हम लोग उपयोग ला सकते हैं। पता है ये शोधन चिकित्सा हम लोगों को क्या करनी है सीबोरेक डर्मेटाइटिस में, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है कि हम लोग शमन चिकित्सा में क्या क्या कर सकते हैं। शमन चिकित्सा में अगर पहले देखेंगे हम लोग कि कषाय पान। कषाय पान मतलब जो कोई भी वात है या कषाय है, उसमें निम्बादि कषाय, इसका पाठ सहस्त्रयोग में वर्णन किया गया है। ये ज्यादातर कफाधिक्य में, त्राव और कंडुआधिक्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। आरगवदादि कषाय जो है, इसका वर्णन वाग्भट सूत्र स्थान 15वें अध्याय में है। ये ज्यादातर कफ शामक है, तो जहाँ पे कफ संसर्ग है, कफाधिक्य है, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। पटोलादि कषाय जो है, ये प्रायः शोधन करने वाला है, कोष्ठ शोधन करने वाला है और धातुओं की शुद्धि करने वाला है, रस धातु अग्नि मान्य करने वाला है, दूर करने वाला है, तो उसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे और भी है कि खदीर, दारवी, निम्ब, हरिद्रा कषाय, ये 4 द्रव्यों को मिला के भी हम लोग इसका कषाय बना के उपयोग में ला सकते हैं। ये भी कोष्ठ शोधन करने वाला है, लसिका और स्राव का नाश करने वाला है और ये व्रणरोपण कर्म करने वाला है। जैसे कि दारवी हम लोगों को पता है, ये व्रणरोपण में उत्कृष्ट है, तो ये सभी जो कषाय है ये शोधन करने वाला, लसिका नाशक है और व्रणरोपण करने वाला है। नेक्स्ट आता है गुड़ुचादि कषाय। गुड़ुचादि कषाय जो है, जहाँ पे असात्मता है, एलर्जिक कंडीशंस है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं और अग्निवर्धक चिकित्सा में भी इसका उपयोग में ला सकते हैं। निशा उत्तमादि कषाय या निशा कतकादि कषाय, ये भी जो केरला ट्रेडिशंस में ज्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। ये जहाँ पे कफाधिक्य है और क्रॉनिक कफ विकार जहाँ पे है, ऐसे अवस्थाओं में निशा उत्तमादि कषाय उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है पटुल कटुकर होइनादि कषाय। ये भी जहाँ पे रक्त प्रसादन आवश्यक है, वर्ण प्रसादन आवश्यक है, रक्तगत क्लेद का पाचन करना है, ऐसे अवस्थाओं में पटोल कटुकर होइनादि कषाय का उपयोग ला सकते हैं। गुगुल तिक्तकम कषाय जो है, ये प्रायली कफवात शामक है और जहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है वहां पर हम लोग इसका ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। तिक्तकम और महातिक्तकम कषाय भी जो है, ये सभी शोणित प्रसादन करने वाले हैं और क्लेद नाश करने वाले हैं। नेक्स्ट आती है जो है गुटी वटी या गुगुल, हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं सीबोरेक डर्मेटाइटिस में, वो है आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, कामदुदा, रक्तपाचक वटी, रसपाचक वटी, ये सब चीजें हैं। आरोग्यवर्धिनी, सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई भी स्किन डिसीज है तो सबसे पहले आने वाला कल्प जो है वो अपना है आरोग्यवर्धिनी। तो ये पाचन करने वाला, दीपन करने वाला है, चालन कर्म करने वाला है। जहाँ पे मल संचय आधिक्य है, जहाँ पे कोष्ठ शोधन होना अपेक्षित है, तो वहां पे हम लोग आरोग्यवर्धिनी का उपयोग कर सकते हैं। गंधक रसायन, गंधक रसायन भी त्वक सारता, रक्त सारता, इसको इम्प्रूव करने में एज अ रसायन तौर पे हम लोग इसका उपयोग में कर सकते हैं। शमन चिकित्सा होने के बाद रसायन चिकित्सा करने के लिए
गंधक रसायन हम लोग उसको दे सकते हैं। वैसे ही कामदुदा जो है वटी, जहाँ पे दहा आधिक्य है, जहाँ पे पित्त अनुबंध है और जहाँ पे रक्त प्रसादन करने की जरूरत है, वहां पे हम लोग कामदुदा यूज कर सकते हैं। रक्तपाचक वटी है, रसपाचक वटी है, जो ज्वरग्न विषम ज्वरों के चिकित्सा में कषायों का वर्णन करते समय किया है। उन्हीं रसपाचक और रक्तपाचक कषायों का घनवटी स्वरूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह रसगत और रक्तगत क्लेद, रस धातुअग्निमांद्य और रक्त धातुअग्निमांद्य दूर करके रस और रक्त की पुष्टि करने वाला और रक्त सारता उत्पन्न करने वाले ऐसे दोनों कल्प है। नेक्स्ट है भृंगराज घनवटी, जहाँ पे क्लेद आदित्य है, जो क्लेद शोषण करने की जहाँ पे अपेक्षा है, वहां पे हम लोग भृंगराज घनवटी, निम्ब घनवटी, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। कैशोर गुग्गुल, यह भी कुष्ठहर बोला गया है, और इसमें जहाँ पे रक्त प्रसादन करना है, वर्ण प्रसादन करना है, ऐसे अवस्थाओं में आफ्टर सिबोरिक डर्मेटाइटिस स्केलिंग जहाँ पे कम हुई है, उसके बाद उसको वर्ण प्रसादन करने की जरूरत है, वहां पे हम लोग कैशोर गुग्गुल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंचदिक्त घृत गुग्गुल, यह भी जहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है या क्रॉनिक स्किन डिसीज है, ऐसी अवस्थाओं में भी पंचदिक्त घृत गुग्गुल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वयंभुवक्य गुग्गुल, ये जो है ये दोनों तरफ आने वाला, मतलब वात रक्त और कुष्ठ ऐसा अधिकार में आने वाला ये कल्प है, जहाँ पे उत्तान वात रक्त के जैसे लक्षण है, जहाँ पे स्केलिंग है, पैप्यूल्स है सेबोरिक डर्मेटाइटिस में, ऐसे अवस्थाओं में हम लोग स्वयंभुवक्य गुग्गुल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है घृत। घृत में जो बोले गए हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है और हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, सबसे प्राइम जो है वो है वज्र घृत। वो जो है ये पोस्ट इन्फ्लेमेशन फेजिस में उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, जहाँ पे लीजन जो है, स्किन लीजन जो है, पैप्यूल्स है, स्केलिंग जो है, जहाँ पे वात आधिक्य है, जहाँ पे रुक्षता है, खरता है, उसको कम करने के लिए, जो लीजन्स हैं मृदु करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इंदुकांत घृत, ये व्याधि शमत्व त्वकसारता इंप्रूव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। गूगल तिक्त घृत वात कफ शामक है। महातिक्त, तिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, ये सभी वात कफ शामक, जहाँ पे कंडु आधिक्य है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। आरव महातिक्त का घृत एक बेस्ट चॉइस रहता है शोधन के पूर्व स्नेहन करने में, स्नेहपान के लिए, जहाँ पे ज्यादातर इसका उपयोग कफवात शामक, जहाँ पे स्केलिंग आधिक्य है, फिशर फॉर्म हुए हैं, परुषता है लीजन्स में, ऐसी अवस्थाओं में आरगवद महातिक्त घृत का उपयोग कर सकते हैं, जो रक्तगत क्लेद का पाचन करके रक्त प्रसादन करता है। वैसे ही निम्ब अमृतोदि घृत और निम्ब अमृतोदि तेल ऐसे ही मार्केट में मिलते हैं। इसका पार्ट वाग्भट कुष्ठ चिकित्सा में बताया गया है। ये भी हम लोग कफ पित्तज कंडीशंस में इसका हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है आसव। आसव अरिष्ट जो बोले गए हैं। सारीवाद्यासव, सारीवाद्यासव जहाँ पे पित्त रिलेटेड कंडीशंस है, जहाँ पे कुई उत्पत्ति है या जो रक्तगत क्लेद है, उसका पाचन करने के लिए हम लोग सारीवाद्यासव का उपयोग कर सकते हैं। निम्न अमृतासव, यह भी कफ रक्तहर है, कफ रक्त शामक ऐसा है। पटोलासव जो है वो शोधन करने वाला है, कोष्ठ शोधन करने वाला है, रक्तपित्त शामक ऐसा यह है पटोलासव। तो जहाँ पे रक्त और पित्त इनका आधिक्य है, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। खजरारिष्ट जो है, जो व्याधि प्रत्यनिक बोला गया है कुष्ठ अधिकार में, तो सभी कंडीशंस में वात पित्त कफज, ज्यादातर के कफज और वातानुबंध अवस्थाओं में खजरारिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। आरगवद अरिष्ट, ये कफ शामक है। रस औषधि, रस औषधि में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रस धातुअग्नि भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई भी कुष्ठ में है या कोई भी सिबोराइड डर्मेटाइटिस के केसेस में है, तो ऐसे अवस्था में रस धातुअग्नि मान्य दूर करने के लिए जो कोई भी वसंत कल्प बोले गए हैं, जैसे कि लघु मालिनी वसंत है, सुवर्ण मालिनी वसंत कल्प है, ये सभी कल्प हम लोग इसमें उपयोग में ला सकते हैं। और रसमाणिक्य, ये जो क्रॉनिक कंडीशंस है, ऐसे अवस्थाओं में जहाँ पे कफ का आधिक्य है, कंडु आधिक्य है, स्राव आधिक्य है, और जो चिरकारी अवस्था है व्याधि की, ऐसे अवस्थाओं में रसमाणिक्य का उपयोग कर सकते हैं।
और एक चीज जाते जाते कि डिफरेंट गण जो बोले गए हैं कि भागवत सूत्र स्थान 15वां अध्याय में शोधनादि गण संग्रह में जो डिफरेंट गण बताए गए हैं उसका उपयोग हम स्किन लीजन्स में या सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में हो या कुष्ठ के अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाओं में कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो ये 10 गण है वाग्भट के और 11वां जो है वो कुष्ठहर महाकषाय है। तो आरगवदादि गण जो है वो स्पेसिफिकली बोला गया है कि कफ पित्त हर है। तो कफ पित्त शामक कफ पित्त कुष्ठ जहाँ पे है ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। कफदोष पित्त दोष अवस्थाओं में आसन आदि गण जो है वो कफो मेदोहर बोला गया है। वो कफो मेदन शामक है जहाँ पे भी स्किन डिसीज या स्किन लीजन्स एसोसिएटेड प्रमेह के साथ है या डायबिटीज के साथ जो कोई भी स्किन लीजन्स या त्वक विकार है तो ऐसी अवस्थाओं में आसन आदि गण का उपयोग कर सकते हैं। अर्कादि गण जो है वो कफ मेदो शामक बोला गया है। कृमिहर भी है, कृमि नाश करने वाला है और व्रण शोधन करने वाला है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। एलादि गण जो है वो वात कफहर है, वर्ण है जहाँ पे हाइपोपिगमेंटेशन है और पिगमेंटेशन इंप्रूव करने के लिए हम लोग एलादि गण का उपयोग कर सकते हैं। सारीवादी गण जो है वो पित्त रक्त शामक है, दाह ज्वर ऐसे अवस्थाओं में भी इसका हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। पटोलादि गण जो है वो शोधन करने वाला है, पित्तहर है जहाँ कहीं भी विष रिलेटेड या दूषी विष रिलेटेड जन्य संप्राप्ति है या ऑटो इम्यून रिलेटेड संप्राप्ति है जहाँ पे पाचन की आवश्यकता है, कोष्ठ शोधन की आवश्यकता है, तो ऐसे अवस्थाओं में पटोलादि गण का उपयोग कर सकते हैं। न्योग्रोदादि गण जो है वो पित्तहर है, तो वर्ण्य है, वर्ण प्रसादन करने वाला है और वैसे ही रससारता और रक्तसारता बढ़ाने वाला है। तो वहां पे हम लोग न्योग्रोदादि गण का उपयोग कर सकते हैं। गुरुचादि गण जो है कफ पित्तहर गण है। इसमें भी जहाँ पे भी एक्यूट कंडीशन है सीबोरिक डर्मेटाइटिस की या कोई भी स्किन डिसीज की एक्यूट कंडीशन है जहाँ पे कंडु आधिक्य है, स्राव आधिक्य है, तो ऐसे अवस्थाओं में हम लोग गुरुचारी गण का उपयोग कर सकते हैं। वर्णादि गण यह भी कफ मेदहर बोला गया है जहाँ पे ओबेस पेशेंट्स है और ऐसे कफ वात की अवस्था है, कफ मेद शामक ऐसे अवस्था में हम लोग वर्णादि गण का उपयोग कर सकते हैं। लोद्रादि गण जो है ये कफ पित्त शामक है। ये एक्ने वल्गरिस या मुखदूषिका में लेपार्थ इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो गण बोले गए हैं वाग्भट में, वाग्भट सूत्र सन 15वें अध्याय में, तो उसके अंतिम था एक श्लोक में बोला भी गया है कि ये गण जो है इसका हम लोग उपयोग अभ्यंग में, लेपार्थ, पानार्थ, स्नानार्थ, कषाय पानार्थ इन सभी में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग भैषज कल्पना में जो कषाय कल्पना बोली गई है स्वरस फॉर्म में है या कल्क फॉर्म में, लेप फॉर्म में हम लोग अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो ये इसको बोल सकते हैं कि बहुत सारे उपयोग हैं ये सभी गणों के। तो हम लोग शिरोधारा के लिए भी है या पंचकर्म में धारा है, परिसेचन है, अवगा है, ऐसी कंडीशंस में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिक सीबोरिक डर्मेटाइटिस की ट्रीटमेंट में 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट एंड प्राइम इंपॉर्टेंस है वो है अग्निबल। अग्निबल वर्धन करने वाली चिकित्सा हमेशा होनी चाहिए जिससे कि रस धातु अग्निमांद्य है, जाठर अग्निमांद्य है वो दूर हो जाए और रसगत क्लेद का पाचन हो जाए तो अच्छे से रस धातु निर्माण होगा, तो उससे रस सारता भी अच्छे से डेवलप होगी। उससे अगर रस सारता अच्छी है तो फिर रक्त सारता भी अच्छे से उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे अवस्थाओं में अग्निबल का विचार करके जैसे कि रसपाचक है, रक्तपाचक ये सभ्य द्रव्य है, पटोलादि कषाय बोला है, पटोलादि आसव है, इन सभी का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। से कफ वातहर चिकित्सा जो जो भी गण कफ वातहर बोले गए जैसे कि अर्कवदादि है, अर्कादि है, पटोलादि गण है, गुरुचादि गण है, इन सभी का अंश अंश कल्पना का विचार करके अपने अपने बुद्धि से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और त्वक सारता इंप्रूव करने के लिए जैसे कि पहले बोला गया है कि जो खलवीय कल्प है या वसंत कल्प है, जैसे कि लघु मालिनी वसंत है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, इन सभी द्रव्यों का हम लोग त्वक सारता मेंटेन रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। रसायन तौर पे हम लोग गंधक रसायन का भी इसमें
उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जो है, मेजर फैक्टर्स जो है, ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अग्निबलवर्धक चिकित्सा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कफवातहर चिकित्सा होनी चाहिए। और त्वकसारता मेंटेन करने वाली, डेवलप करने वाली हमेशा चिकित्सा करनी चाहिए। तो कॉमन पथ्य जो है, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोई भी स्किन का नरिशमेंट है या हेल्थ है, वो हमेशा कोष्ठ से शुरू होती है। तो रस धातु और रक्त धातु ये मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहते हैं स्किन हेल्थ में। धातुओं में रस और रक्त, और दोषों में वात कफ का भी साम्यावस्था होना रस रक्त शुद्धि के साथ, ये सभी चीजें स्किन में जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस उत्पन्न करता है, जो सीबम उत्पन्न करता है ऑयली स्किन, तो ड्राइनेस उसका नहीं हो पाएगा, और जो ऑयल है या जो स्नेहन है वो मेंटेन रह पाएगा। तो उसमें पथ्य में है कैरेट्स है, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी, दे कैन बी कंज्यूम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, स्पिनच, ये सब चीजें। होल ग्रेन्स, जो रिच सोर्स है विटामिन बी का, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, विच आर द प्राइम इम्पोर्टेंट इन द स्किन इम्यूनिटी, ये हम लोग ले सकते हैं। ओल्ड शाली मतलब पुराना शाली जो है, षष्टिक शाली राइस है, यव है, मुर्गा है, तिक्त शाक जैसे कि पटोल है, दूधी भोपड़ा बोलते हैं उसको हम लोग, कारावेल्लक है, ये सभी चीजें हम लोग सेवन में ला सकते हैं। गोधूम है, ये भी पत्थर बोला गया है। अभ्यंग जो है हम हमेशा नित्य कर सकते हैं, वज्रक तेल से है या कोकोनट ऑयल से है, नारिकेल तेल से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्साधन में भी अरग बदादी का जो गण बोला गया है वाग्भट में, उसी गण के कषाय से हम लोग उत्साधन या स्नान के लिए उपयोग कर सकते हैं। पान परिषेक एंड अवगाह के लिए हमेशा नित्य हम लोग खदीर कषाय या खदीर जल, स्किन कंडीशन या स्किन लीजन वाले पेशेंट्स में, सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में हम लोग इसका उपयोग ला सकते हैं। अपत्य जो है स्लीप अल्ट्रेशन, यह सभी कुष्ठ के रुग्णों के लिए है। अतिकाल भोजन जैसे ही अनियत काले निद्रा, ये सभी चीजें गलत है, वो अपत्यकारक है। आद्यशन है, इससे रस की दृष्टि हो सकती है। आतप सेवन, उससे रक्त दृष्टि होकर व्याधि और बढ़ सकता है। वायु सेवन, अग्नि सेवन, आतप सेवन, ये सभी चीजें रक्त दृष्टिकर है, और ये सभी चीजें कुष्ठ को बढ़ाने वाली है। मध्य मांस, मध्य, दुग्ध, दुग्धजन्य विकार जैसे कि तुलसी का किलाड़ बोले गए हैं, जैसे कि हम लोग आज की भाषा में पनीर, बटर, चीज, ये सब चीजें भी अवॉइड करनी है। हॉर्स ग्राम मतलब चने की दाल जो है वो भी अवॉइड करनी है। माश, ये भी कुष्ठ को पैदा करने वाले हैं ऐसे बोला गया है। इक्षु विकार जैसे कि काकवी है, ये भी अवॉइड करना है। पिष्टान्न जैसे कि फास्ट फूड्स है आजकल के, पिष्टा में पदार्थ है, पिज्जा है, बर्गर से, ये सभी चीजें इसमें आ सकती है। अम्ल रसात्मक आहार जैसे कि दही, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। कटु रसात्मक आहार, लवण रसात्मक, आधिक्य वाले जो आहार है, ये सभी चीजें अवॉइड करनी है। तो ये सब चीजें यहाँ तक पत्या पत्ते की हो गई है। तो लास्ट में प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ 3 केसेस शेयर करना चाहता हूँ कि जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस करके आती है, और हम लोग उसका निदान क्या कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या चिकित्सा करनी है। एक 39 ईयर्स की फीमेल रुग्ण, उसको शिरोप्रदेशी पीटी का उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पे कंडु आधिक्य और स्राव आधिक्य था। वो लास्ट नियर अबाउट 10 to 15 डेज से हो रहा था उसको। पूर्व व्याधि वृत्त, उसको एलोपेशिया था सिंस 2 ईयर्स। उसकी पूर्व चिकित्सा पीआरपी ट्रीटमेंट लिए थे उसने एक एक हफ्ते पहले। तो उसका निदान हम लोगों ने अरुणशिका किया था। उसके पिक्चर से मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। उसकी चिकित्सा में हम लोगों ने निम्बघन वटी, त्रिफला भृंगराज वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, डैनो ऑयल और लिमुनो शैम्पू, ये सब चीजें दी थी जो जेआर की कंपनी के हैं। तो फोटोज देख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट डे का पिक्चर है उसका। स्काल्प रीजन में जहाँ पे थिक येलो कलर के क्रस्ट फॉर्मेशन दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे कंडु आधिक्य था, क्वचित स्राव था, अल्प स्राव था उसमें। 8 दिन के बाद चिकित्सा देने के बाद उसमें जो क्रस्ट फॉर्मेशन था और जो स्केलिंग था वो नियर अबाउट कम हुआ था 50-60%, और आफ्टर 15 डे उसका काफी हद तक मतलब 80 to 90% इसका इम्प्रूवेशन हुआ था। और आगे 15 डेज उसको हम लोगों ने चिकित्सा शुरू रखी, तो तब तक उसका वो पूरा कवर हो चुका था या जा चुका था।
तो इसमें जो हम लोगों ने त्रिफला भृंगराज वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी जो दिए थे, वो सभी पाचन करने वाली, दीपन करने वाली, क्लेद शोषण करने वाले, क्लेद का नाश करने वाले, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दिया था। उसके बाद शिरो अभ्यंग के लिए डैनो ऑयल और भई परिमार्जन चिकित्सा में ल्यूमिना शैम्पू इसका उपयोग किया था। तो इसका डायग्नोसिस आयुर्वेद में हम लोग अरुणशिका करते हैं। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस का एक प्रेजेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट हम लोगों को कैसे प्रेजेंट होते हैं क्लिनिक में और अपना निदान क्या होना चाहिए। अरुणशिका के लक्षण जैसे बोले गए हैं कि अरुणशिकानी बहुवक्त्राणी बहुक्लेदानी मूर्धनि कफासृक कृमि कोप्याना नुराम विद्यात अरुणशिका। अरुषि जो है वो बहुवक्त्राणी होती है, जैसे कि देखा कि हम लोग वहाँ पे मल्टीपल क्रेस्ट थे, फॉर्मेशन थे, उसमें बहुक्लेद क्लेद अवस्था थी आधिक्य, और शिर प्रदेश में उत्पन्न होने वाला ये था, और उसमें कफ आधिक्य, रक्त आधिक्य और क्रूम के आधिक्य से इसमें अरुषिका उत्पन्न होते हैं। अरुषिका की ग्रंथोक्त चिकित्सा सुश्रुत में बोली गई है कि इसमें हम लोग रक्त अवशेषण भी कर सकते हैं, इसमें निम्ब वारी मतलब निम्ब कषाय का परिसेचन कर सकते हैं, या हरिताल मनशिला निम्ब कलकय का लेपन भी कर सकते हैं। यष्टि नील उत्पल है एरंडय मार्कय व प्रलेप। हम लोगों ने इसमें प्रलेपन की जगह पे डैनो ऑयल जो दिया था उसमें नीली है, मार्कव है, जपा कुसुम है, ये सभी चीजें थी, तो उसको हम लोगों ने अभ्यंग के तौर पे दिया था। तो उसमें इंद्रलुप्तम अहम तैलम अभ्यंगम जो प्रशस्त थे। तो चिकित्सा सूत्र के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उनको अभ्यंग और अभ्यंतर चिकित्सा दी थी, जिससे उनको काफी हद तक फर्क इंप्रूवमेंट दिखाई दी उनमें। नेक्स्ट केस है एक 49 ईयर्स में, ये हमारे रुग्णालय में 5 वर्ष पहले आया था। उसके शिरो प्रदोषी में श्यावताम्र वर्णी वैवर्ण्य था, उस प्रदेश में रुक्षता थी, कंडू था, स्राव था पिछले 1 साल से, उसके कोष्ठ के लक्षण में मलविबंध था। पूर्व चिकित्सा उन्होंने काफी लोकल एंड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाए थे। तो उनका निदान हम लोगों ने विचर्चिका किया था। उनकी चिकित्सा में भय परिमार्जन चिकित्सा में तक्रधारा मुस्तामल की से किया था सॉरी, स्नेहन 777 ऑयल सोरोनिन ऑयल से किया था। बस्ती हिंगू त्रिगुण तेल से कोष्ठ शोधन के लिए और मल विबंध दूर करने के लिए बस्ती दिया था, अनुवासन बस्ती, और इनमें वमन भी कराया था, स्नेहपान, क्योंकि दीर्घकाल व्याधि का अनुबंध था, दोषों का अनुबंध था, इसलिए स्नेहपान उनको वज्रघृत से करा के वमन कराया था। उसके बाद शमन चिकित्सा में 2 महीने तक उनको आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, कैशोर गुगुल, रक्तपाचक वटी, खदीर अरिष्ट और महातिक्त घृत शमन मात्रा में हम लोगों ने शुरू रखा था। तो ये उसके पहले और बाद के आफ्टर 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के फोटो है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि श्यावताम्र वर्णी वैवर्ण्य है, वहां पे क्वचित स्राव होता था, उसमें पेटी का उत्पत्ति थी, कंडू का आधिक्य था। तो ये सभी चीजें विचर्चिका में भी रिसेंबल करती है। तो उसको चिकित्सा देने के बाद, तक्रधारा वमन करने के बाद और शमन चिकित्सा के बाद वहां पे उसका जो क्रस फॉर्मेशन था, स्केलिंग थे, वो काफी हद तक कम हुआ था, नियर 10-20% ही बाकी था उसमें। उसके बाद जो वैवर्ण्य था वो भी कम हुआ था, वो नॉर्मल स्किन कलर में आ रहा था उसमें। और उसके बाद वही चिकित्सा हम लोगों ने 2 महीने तक शमन चिकित्सा फॉर्म में उसको शुरू रखी थी। नेक्स्ट केस है इसके 23 ईयर्स मेल, इसके वेदना विशेष ये स्पेसिफिकली उरा नास उभयकर्ण पश्चात आरक्त वर्णी वैवर्ण्य, वहाँ के प्रदेश में कंडू दहा क्वचित था, एक्सपो व्हेन एक्सपोज टू शेविंग जेल और परफ्यूम्स, उसका वो कंडू था या जो पैचेस थी वो बढ़ती थी, उसमें बलविबंध क्वचित प्रसंग में रहता था। तो उसने भी पूर्व चिकित्सा में डेस्नोइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर लोकल एप्लीकेशन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। उसका एलोपैथी में डायग्नोसिक सीवोरिक डर्मेटाइटिस किया था। इसके पिक्चर्स नहीं है मेरे पास शो करने के लिए, तो मैं इसको खाली केस प्रेजेंट करता हूँ। इसको हम लोग ये जो टिपिकल सीवोरिक डर्मेटाइटिस के लीजन जहाँ पे रहता है चेस्ट रीजन में, पूरा प्रदेश में था, उसको नासा प्रदेश में मतलब नेजोलेबियल फोल्ड्स में था, उभय कर्ण पश्चात रेट्रो ऑरिकुलर एरियाज में था, और उसी वहाँ पे इचिंग था और बर्निंग सेंसेशन अल्प था। तो ये सभी की वजह से उसका डायग्नोसिस सीवोरिक डर्मेटाइटिस था।
तो उसकी चिकित्सा में हम लोगों ने आरोग्यवर्धिनी, कैशोर गुगुल, आरगवत कपिला, खजीर अरिष्ट, सोरोलिन ऑइंटमेंट लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था। ये पेशेंट का 1 महीने तक फॉलोअप था हमारे पास। उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू किया ट्रीटमेंट। तो इसकी वजह से उसके फोटोज नहीं है पहले और लास्ट वाले। तो ये ट्रीटमेंट में उसको नियर अबाउट 50 to 60% उपशम मिला था आरोग्यवर्धिनी कैशोर गोगोई में। और जो सोरोलिन ऑइंटमेंट दिया था उसके एप्लीकेशन से उसका जो रक्त विवरण था, जो उसकी स्केलिंग थी, पैप्यूल्स थे, वो काफी हद तक कम हुए थे। तो ये सब एज ए सीवरिक डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोगों ने उसको चिकित्सा के तौर पे दिया था। आरोग्यवर्धिनी जो है कफवात शमक, पाचन करने वाली, कैशोर गोगोई रक्त प्रसादन करने वाला, अरगवत कपिला कृमि का इतिहास हो तो वो दूर करने के लिए, और मल विबंध दूर करने के लिए, ये सब चीजें उसमें हम लोगों ने उपयोग में लाई थी।